Hello everyone, welcome back. In this video, we will discuss about the wave impedance. First, we will see the definition of the wave impedance. Then we will see how mathematically this wave impedance can be represented. And then in next videos, we will derive the expression for wave impedance for TE waves and TM waves. So first we will see what is wave impedance. Now already हमने देखा हुआ है कि if we are having the transmission line, right, as a transmission media, already transmission line के बारे में आप लोगों ने पढ़े हैं. If we are having this transmission lines, two wires, we have seen that whenever the current is flowing through these transmission lines, this transmission line will offer some impedance to the flow of current. इस flow of current को कुछ impedance यानी opposition ये क्या करता है, offer करता है, right? Similarly, when the wave is traveling through the rectangular waveguide, it will offer some impedance to the flow of the wave. इस wave के flow को कुछ impedance offer करेगा. But this impedance in case of this rectangular waveguide is different as compared to the impedance offered by the transmission line to the flow of current. तो ये impedance अलग-अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है? Because transmission line में जो current flow हो रहा है, right? या in case of transmission line we are having the voltage and current, right? और voltage divided by current के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, impedance बोलते हैं, right? लेकिन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ऐसे कोई वोल्टेज या करंट वाला टर्म हमारे पास नहीं है. इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड द वेव ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with the help of electric field and the magnetic field, and we have also seen that this electric field and the magnetic field, they are always perpendicular to each other, and also they are perpendicular to the direction of propagation. तो हमारे पास हमने अज्यूम किया था इसके प्रीवियस वीडियोस में द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज सपोज इन जेड डायरेक्शन. वो अगर जेड डायरेक्शन में अगर हम वेव प्रोपोगेट हो रहा है ऐसे अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास देखिए तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास EX, EY एंड EZ, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के. और मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स HX, HY and HZ, ऐसे तीन कंपोनेंट में लिख देता हूं. Now you have to remember that when the wave is propagating along the Z direction, right, EZ component does not go in the Z direction as well as HZ component will also not propagate in the Z direction. ठीक है. Now electric field and the magnetic field will always be perpendicular to each other and it is also perpendicular to the direction of propagation. इसका मतलब Z डायरेक्शन में अगर मेरा वेव जा रहा है तो एक डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और दूसरे डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन अगर लेता हूं, सपोज दिस इज ये Z डायरेक्शन लिया मैंने, तो ये सपोज मेरा X डायरेक्शन रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा Y डायरेक्शन में रहेगा. या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगर Y डायरेक्शन में अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा X डायरेक्शन में रहेगा. That means they will be perpendicular to the each other and both they are perpendicular to the direction of propagation. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे कोई वोल्टेज या करंट नहीं है, but still it offers some impedance. That impedance it is called as the wave impedance. So जैसे कि यहाँ पे हमने देखा it is the ratio of voltage and current. Now in this case this wave impedance is the ratio of electric field component and magnetic field component. So the wave impedance in rectangular waveguide is defined as it is the ratio of electric field in one transverse direction. You can read the definition. The wave impedance is defined as the ratio of field strength, ratio of strength. कौन सा strength? Electric field strength या magnetic field strength of electric field in one transverse direction to the strength of the magnetic field along other transverse direction to the propagation. यानी प्रोपोगेशन हम Z डायरेक्शन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बोला है, वेव इंपीडेंस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी क्या आएगा हमारे पास, न्यूमरेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन वन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द, बोला है मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, H से. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज H, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. तो E डिवाइडेड बाय H अगर मैं करता हूं तो वो इंपीडेंस मिलता है मुझे, ठीक है. उस इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं Z से. तो उसके बाद में देखिए फिर से पढ़ता हूं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. तो अभी Z डायरेक्शन में अगर मेरा वेव जा रहा है तो इसका मतलब
वन ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सपोज ई एक्स अगर लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहना चाहिए मेरे पास, ई वाई डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो आई कैन राइट डाउन जेड इज इक्वल्स टू ई एक्स डिवाइडेड बाय एच वाई, या इसका अगर मैं उल्टा कर देता हूं, अगर यहाँ पे ई वाई अगर मेरे पास वाई डायरेक्शन में है तो एच मेरा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में रहेगा। तो जेड कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अभी डायरेक्शन उल्टा कर दिया मैंने तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इन दिस केस नाउ द जेड कैन बी नाउ रिटर्न एज दैट इज ई वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गए, इसलिए क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे माइनस साइन दे दूंगा, राइट। तो ये यहाँ पे देखिए वेव इंपीडेंस इज जेड सफिक्स जेड से रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम, एंड ई एक्स डिवाइडेड बाय एच वाई, और इट कैन बी माइनस ई वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स। एक्स बाय वाई अगर लेते तो पॉजिटिव, y बाय x अगर लेते हो तो निगेटिव, ध्यान रखना है। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और Ex और Ey दोनों अगर स्पेसिफाई किया है तो उस केस में क्या करेंगे, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। उसी तरह से अगर दोनों मैग्नेटिक कंपोनेंट अगर आपके पास है तो अंडर रूट ऑफ Hx स्क्वायर प्लस Hy स्क्वायर, राइट। So here in this case, wave impedance is simply the ratio of electric field strength in one transverse direction to the magnetic field strength in other transverse direction to the direction of propagation of wave. तो वेव इंपीडेंस जब भी आपको निकालना रहेगा, आपको Ex और Hy का इक्वेशन आपको लगेगा, राइट। अभी Ex और Hy की जो जनरलाइज इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन ऑलरेडी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। क्या करना आपको, Ex, Ey, Hx एंड Hy, ये चार जनरलाइज इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं, आपको रटना पड़ेगा इन चारों को, देन एंड ओनली देन यू कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेव इंपीडेंस, राइट। अभी जनरलाइज इक्वेशन है, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है Ez और Hz नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे वेव प्रोपोगेशन अलोंग z डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था। तो अगर वेव z डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उस केस में Ez और Hz कंपोनेंट मेरे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ध्यान में रखना है। तो ये इसलिए हमको ये Ex, Ey और Hx, Hy ये चार कंपोनेंट फील्ड कंपोनेंट के इक्वेशंस, जनरलाइज इक्वेशंस आपको कंसीडर करना है। इसका कुछ डेरिवेशन है लेकिन ये डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वहां से अगर किसी को इंटरेस्ट अगर है तो यू कैन रेफर दैट नोट्स एंड यू कैन सी हाउ दीज इक्वेशंस आर डिराइव्ड, राइट। तो Ex का इक्वेशन ये आया हुआ है, दैट इज माइनस गामा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू डेल Ez डिवाइडेड बाय डेल x, दैट इज द चेंज इन z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, minus j omega mu divided by h square into del hz divided by y, that is the variation of z component with respect to y। यहाँ पे gamma आया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था gamma इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। h क्या रहता है हमारे पास, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू m पाई बाय a होल स्क्वायर प्लस b रहता है हमारे पास n पाई बाय b, उसका स्क्वायर रहता है लाइक दिस, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द मोड्स एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड, राइट। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। सिंपली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये चार फील्ड इक्वेशंस आपको एनी हाउ याद कर लेना है, क्योंकि ये चार इक्वेशंस अगर आपको याद करते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द डेरिवेशंस फॉर द वेव इंपीडेंस, राइट। Ey का इक्वेशन भी पढ़ लेता हूं मैं, Ey इज इक्वल टू माइनस गामा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डेल Ez बाय डेल y प्लस j ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डेल hz बाय डेल x, राइट। देन hx लिखेंगे हम j ओमेगा एप्सिलॉन डेल Ez डिवाइडेड j ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डेल Ez बाय डेल y माइनस गामा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डेल hz बाय डेल x, एंड फाइनली hy is this one। So you have to remember all these generalized field equations। कैसे याद रखना है, दैट इज यू कैन थिंक, आसानी से कुछ मेथड डेवलप कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।